culture. So here in this particular chapter, what they're trying to, what is the content of the chapter is that where the printing culture started in the world, which were the major countries, or which were the initial countries which started with the printing technology, as is mentioned in this particular slide also, that the earliest print technology was developed in China, Japan, and Korea. These were the initial three countries which used to, which just started with the hand printing culture. Before this, no printing was there. So these were the initial countries. Though India was also having this particular technology, they also started with the hand printing. But जो सबसे पहले start हुई थी, initial part, that was with the China, Japan, and Korea. So these were the three nations which started. In this chapter, we will be taking ahead that what all was printed in China, how the initial printing was done in China, and then Japan, and moving towards the Europe. These are the Asian nations which they are talking about, the South Asian nations, which in this chapter they are talking about, and then rest of the European countries, how they established their print culture and how they got benefited out of it. They are trying to relate it with the French Revolution as well, that how the people of France, they took this print culture as one of the medium that spread the French Revolution. So that is what they're explaining in this chapter. So starting with the print in China, from AD 594 onwards, books in China were printed by rubbing paper, also invented there, against the inked surface of wood blocks. Wood blocks, जैसे आप अपने different clubs होते हैं, या आप art में भी देखते हो, there are different wood blocks जिसके ऊपर कुछ pattern print किया होता है, and you just put it to stamp towards the ink, और उस पे ink लगा के आप उसको किसी भी उस पे जब छाप देते हो, that becomes your printing. So that kind of printing initially started in the world. सबसे पहले जो चाइना में start हुआ था, that was this particular type of printing. So as both sides of the thin porous sheet could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side, like it is visible over here. If I can just zoom it, ये जैसे आपके कुछ कार्ड्स बने हुए आते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बने हुए आते हैं, where what they're saying कि in that particular era जो paper था, that was not so hard bound, or that was not so of such a quality कि एक साइड आप जब प्रिंटिंग करोगे तो दूसरी साइड भी आप उसको यूज कर सकते हो. दैट कंडीशन वाज नॉट देयर. सो व्हेनेवर दे यूज्ड टू प्रिंट ऑन अ पर्टिकुलर साइड, तो उसके जो बैक साइड था वो खराब हो जाती थी. यू कैन नॉट प्रिंट इट ओवर देयर. सो दे यूज्ड टू मेक दीज फोल्डेड काइंड ऑफ बुक्स. जैसे एक फोल्ड दूसरा फोल्ड करके इसे आप उसको पूरा ओपन करके खोल सकते हो. दीज बुक्स वर नोन एज अकॉर्डियन बुक. इन बुक्स को बोला जाता था अकॉर्डियन बुक. इनका नाम है, ये अकॉर्डियन वर्ड याद रखना आपने. एंड ये एक पर्टिकुलर बुक बनती थी. उसके बाद इसको डुप्लीकेट बनाया जाता था. डुप्लीकेट हाउ? थ्रू द कैलीग्राफी. कैलीग्राफी इज फॉर्म ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ राइटिंग. एक राइटिंग आर्ट है कैलीग्राफी, जो आप बहुत सुंदर तरीके से जब आप घुमा के वर्ड्स को हम लिखते हैं, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं. सिमिलरली जो यहाँ पे अगर आप देखोगे द डिफरेंट, ये जितना भी ये सारा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, these particular things in, ये एक बार वुड ब्लॉक से बनता था, प्रिंट होता था. उसके बाद इसकी कॉपी बनाई जाती थी थ्रू द हैंड. लोग इसको, जो सुंदर कैलीग्राफी करने वाले लोग थे, दे यूज्ड टू कॉपी इट जस्ट एज इट इज, as they are printing it with the block, wooden block. Similarly ये इसको एक इसकी कॉपी बना लेते थे हाथ से. So that kind of work was, that kind of technology was being used in the China in the initial time. Moving ahead with China, the imperial state in China was for a very long time the major producer of the printed material. बहुत सारे ये prints बनाते थे उस time पे, जो different empires थे China
was under different empires, वो सारे ये printed material को produce करते थे. China possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination. Bureaucratic system where जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे है एक गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के कुछ साथ में काम करने वाले हाई ऑफिशियल्स होते हैं जिनको हम थ्रू द डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम उनको रिक्रूट करते हैं. तो मतलब उनका इलेक्शन नहीं होता, दे आर बीइंग रिक्रूटेड थ्रू द डिफरेंट एग्जामिनेशन को करवाया जाता था चाइना में, क्योंकि चाइना में चाहे वो दे वर अंडर द रूल ऑफ द किंग और जो उनका एम्पायर वाला ही रूल था, मोनार्कियल रूल वाज देयर, बट स्टिल जो उनका सेटअप था गवर्नमेंट का वो ऐसा था कि जो हायर ऑफिशियल्स थे दे यूज्ड टू बी रिक्रूटेड थ्रू द एग्जामिनेशन. तो उस एग्जामिनेशन के लिए लोग पढ़ते थे थ्रू दीज काइंड ऑफ ब्लॉक प्रिंटेड बुक्स. Textbooks for this examination were printed in vast numbers under the sponsorship of the imperial state. ये जो वहाँ चाइना की गवर्नमेंट थी वो उसको प्रिंट करवाती थी पैसे देके, और फिर ये टेक्स्ट बुक्स को बेचा जाता था, which people used to buy, they used to read them, and then they used to sit for the examination. From 16th century, the number of examination candidates went up, and that increased the volume of print. So जैसे जैसे लोग एग्जामिनेशन ज्यादा एग्जामिनेशन देना चाहते थे वैसे वैसे डिमांड बढ़ गई बुक्स की. तो बहुत जल्दी 16th सेंचुरी तक आते आते ये जो प्रिंटिंग थी, जो हाथ से प्रिंटिंग होती थी, कैलीग्राफी बनती थी, वुडन ब्लॉक्स पहले बनते थे, फिर कैलीग्राफी के थ्रू उसको डुप्लीकेट करते थे. ये बहुत स्लो प्रोसेस था, लेकिन जो डिमांड बढ़ रही थी चाइना में, जो पहला रीजन है जो हमने देखा अभी, दैट ड्यू टू दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये दिस डिमांड वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे. उसके अकॉर्डिंग जो ये टेक्नोलॉजी थी ये बहुत स्लो थी. डाइवर्सिफाइड यूजेस ऑफ प्रिंट. नाउ वो तो एक रीजन हो गया. द फर्स्ट रीजन दैट वी डिस्कस इन द लास्ट स्लाइड, दैट वाज द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. पीपल यूज्ड टू बाय दोस पर्टिकुलर बुक्स फॉर द एंट्रेंस एग्जाम. बाय 17th century, नाउ मोर ओवर कहाँ प्रिंट को यूज करते थे. 17th century, as urban culture bloomed in China, the use of print diversified. Urbanization हो रहा था. Urbanization, I hope we understand, जहाँ पे cities का development होना शुरू हो जाता है. People coming out of the rural areas and moving towards the city culture. तो वो urbanization develop हो रहा था. Print was no longer used just by the scholar officials. Merchants used print in their everyday life as they collected trade information. जैसे आज की डेट में हम देखते हैं, किसी भी दुकान में चले जाओ, किसी शॉप में, स्मॉल और द बिगर वन, दे एवरीवेयर दे आर यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर देयर बिलिंग, फॉर देयर रिकॉर्ड कीपिंग, फॉर एवरीथिंग. उस टाइम पे ऐसे ही जो मर्चेंट्स थे वो अपनी पूरी ट्रेडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखना, एवरीथिंग, दे वर आल्सो यूजिंग दिस प्रिंट. So it was not about the people, the scholar people, those who were writing as an intellectuals, but also the merchants or the daily use जो traders वगैरह अपना सारा रिकॉर्ड रखने के लिए they used to use the print. Preferences of new readers were now new kind of public was there in China, जो क्या पढ़ना चाहते थे, fictional narratives पढ़ना चाहते थे, as written over here in third point. ये fictional narratives को पढ़ना चाहते थे. Fictional means कि जो आपकी imaginary कहानी होती, ऐसी कहानियों को पसंद करते थे लोग. पोएट्री को पसंद करने लग गए थे. ऑटोबायोग्राफीज को पसंद करते थे, किसी के बारे में लिखी हुई उसकी जीवन की कथा को लिखा जाता था. एंथ्रोपोलॉजीज ऑफ लिटरेचर मास्टरपीसेस को पसंद करते थे. एंथ्रोलॉजीज मींस जो जहाँ पे द स्मॉलर स्टोरीज, द कंपाइलेशन ऑफ द स्मॉलर स्टोरीज आर देयर, and then romantic plays were there. So all these different type of reading public was also being generated in China at that time, which created the demand for the Chinese books. पहला इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था पिछले वाले उसमें, that was the civil service examination, that for which people wanted the books or the printing was required. Then we have also seen that merchants, traders and different other people also, जो entrepreneurs थे, they used to keep the records in the form of prints, and then these different forms were being asked by the demands were being asked by the people of the China, for which now China wanted more and more printing technology to be developed. Moreover, moving ahead with the same thing, जो पीछे अभी हमने reasons देखे, उसी के साथ और add करते हुए, rich women also began to read.
poor women were not so opportunate, they were not getting so much opportunity to read and to be literate much in the initial times, but jo rich women thi, they got this opportunity to be literate. So they began to read, and many even many women even they published their poetry and plays, or jo khud se likh sakti thi, those who had that caliber, they started publishing their different items also. Similarly, जो already पढ़े लिखे लोग थे, जो books बनाते थे, जो official scholars थे, their wives, they also started publishing their works, and they started writing about their life, कि उनकी life कैसी है, how the life is different from the different people, literate की life कैसे different है, illiterate से, women की life कैसे different है, men से, that all kind of different writings got printed in China during that time. Now, new reading culture was established there, accompanied by new technology. Western printing techniques and mechanical presses were imported in the late 19th century as Western powers established their outposts in China. बाहर से जो वेस्ट से डिफरेंट टेक्निक्स आनी शुरू हो गई थी चाइना के अंदर, और धीरे धीरे ये न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, जिसका जो एक मेन सेंटर बना उस टाइम पे, दैट वाज द शंघाई. इट वाज अ सिटी जो बहुत पॉपुलस सिटी था, बहुत पॉपुलेशन यहाँ पे रहती थी, आज की डेट में भी पॉपुलेशन बहुत है यहाँ पे. इट बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर केटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स. यहाँ पे ये जो शंघाई था, इसमें बहुत सारे वेस्टर्न स्कूल्स डेवलप हो गए थे. वेस्टर्न स्कूल्स मीन्स अब यहाँ पे क्योंकि बाहर के पोर्तुगीज भी आ रहे थे थोड़ा चाइना पे कंट्रोल करने के लिए, ब्रिटिश आल्सो कमिंग हियर फॉर द ट्रेडिंग. सिल्क रूट आप पढ़ चुके हो पहले से कि सिल्क रूट के थ्रू चाइना से बहुत ट्रेडिंग होती थी. तो डिफरेंट नेशंस के लोग, यूरोप से डिफरेंट नेशंस के लोग चाइना में आते थे, एंड यहाँ पे रहकर उन्होंने कुछ वेस्टर्न स्टाइल के स्कूल्स डेवलप कर दिए थे. तो उन स्कूल्स को टेक्स्ट बुक्स वर रिक्वायर्ड. उन स्कूल्स के लिए क्या चाहिए थी, जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, दीज टेक्स्ट बुक्स वर रिक्वायर्ड. तो ये सारी टेक्स्ट बुक्स की डिमांड शंघाई में बढ़ गई. तो यहाँ पे जो एक बहुत ज्यादा हाई डिमांड सिटी बन गई है for related to the printing, and too much printing was being done in this particular area. So from hand printing there was now a gradual shift to the mechanical printing. क्योंकि जब इतनी सारी चीजें हमें इतनी सारी बुक्स को बनाना है, तो डेफिनेटली हैंड प्रिंटिंग वाज नॉट इनफ. तो धीरे धीरे प्रिंटिंग में टेक्नोलॉजी में चेंज आया, एंड विद दैट चेंज there was a shift towards the mechanical printing. This is regarding the Japanese book. जो सबसे पहली Japanese book बनी थी, this is very important, जिसका पेपर में आता है इसके बारे में. The oldest Japanese book, which was printed in 868 AD, was Buddhist Diamond Sutra. क्योंकि जब different trading होती थी, जब people were using the Silk Route to here and there from the Europe to Asia, from Asia to different areas. So people were also carrying the religious information. They were also spreading, they were also exchanging their religious explanation, religious beliefs. So ऐसे Buddhist missionaries जो थे, वो चाइना से hand printing technology they brought to Japan. So इसमें हमें क्या याद रखना है कि related to Japan when we talk about, पहले वाला जो था that was about China. यहाँ पे अब हम क्या बोल रहे हैं, जापान में प्रिंटिंग की इंफॉर्मेशन आई थी थ्रू चाइना. हु ब्रॉट इट? बुद्धिस्ट मिशनरीज वर देयर. ये हमें याद रखना है अच्छे से कि बुद्ध रिलेटेड टू जापान, जो फर्स्ट प्रिंटिंग के बारे में. तो बुद्धिस्ट मिशनरीज मींस बुद्धिज्म को फैलाने वाले जो रिलीजियस लोग थे, जो चाइना से ये टेक्नोलॉजी को जापान में लेकर आए थे. एंड द फर्स्ट प्रिंट व्हिच दे मेड वाज द डायमंड सूत्रा. इस नाम को याद रखना है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. इट वाज द बुद्धिस्ट रिलीजियस बुक. एंड किस तरह की बुक थी? ज्यादा नहीं, इसमें सिर्फ 6 शीट्स वर देयर, और उसके अंदर जो आपका वुड कट इलस्ट्रेशंस थी, जो वुडन ब्लॉक से, ब्लॉक प्रिंटिंग से, हैंड प्रिंटिंग से बनाई गई. दिस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट प्रिंटिंग ऑफ जापान.
अब जापान में क्या था, जापान में वन मोर थिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड. चाइना में it was mainly the text which was being printed. We talk about China. But in Japan, the new culture started. Japan also started printing the pictures. जैसे पेंटिंग्स को प्रिंट किया जाने लगा, डिफरेंट किसी तरह का जो डिजाइन्स को, डिफरेंट प्रिंट्स को टेक्सटाइल्स पे, कपड़े के ऊपर, प्लेइंग कार्ड्स पे, पेपर मनी के ऊपर, ये सब पिक्चर्स को प्रिंट किया जाने लगा. In the medieval Japan, poets and prose writers were regularly published and books were cheap and abundant. So Japan में एक नया culture start हो गया with the introduction of the pictures and the paintings. Printing of visual material, जो अभी हम picture की बात कर रहे थे, that is the visual material. It led to the interesting publishing practices. In the late 18th century, in the flourishing urban circles at Edo, again you need to remember the name. Edo is the current Tokyo. उस time पे Edo बोलते थे और आज की डेट में उसको Tokyo बोलते हैं. So this name also remember for 1 mark question. Illustrated collections of paintings depicted an elegant urban culture involving artists, courtesans, जो कोर्ट में रहने वाले, काम करने वाले लोग थे, and tea house gatherings. Libraries and bookshops were packed with hand-printed material at various types, like books on women, musical instrument, calculations, tea ceremony, etc. So just what they're trying to portray over here, that the visual material which was started printing in Japan, वो क्या portray करता था, क्या दिखाने की कोशिश करते थे उसमें वो कैसे urban culture, because urban culture was new, that was developing at that time. So urban culture को वहाँ पे उन paintings के through दिखाया जाता था, visuals के through दिखाया जाता था. Difference between the life of men and women was also printed over there. जो आपके different आर्टिस्ट से रिलेटेड काम दिखाया जाता था, कोर्ट में कैसे काम चलता है वो कोर्टेसन्स के थ्रू वो दिखाया जाता था, डिफरेंट पार्टीज का प्रोग्राम्स को दिखाया जाता था. दैट काइंड ऑफ ऑल डिफरेंट प्रिंटिंग मटेरियल, विजुअल मटेरियल वाज बीइंग प्रिंटेड. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिक्चर ऑफ द कोरियन लाइब्रेरी. तीन कंट्रीज की हमने बात की थी वेयर द प्रिंटिंग वाज बीइंग स्टार्टेड in initial era. That was China, Japan, and Korea. So this is one of the library of that time period in Korea. It's just a picture. This is a scene where they're trying to show morning scene. इसको बोलते ukiyo print. Okay, it was being done by the person Shunmen Kubo. What he wanted to portray over here, if you just go through this man, I just mark with this. You're able to see this particular person, he is just enjoying the tea, and he was just enjoying the snowfall which is going through the window, which was going on outside. And otherwise, if you talk about the rest of the people in the image, all women which are there, they all are busy in one or the other domestic work. So they wanted to portray that how the life of women was different from the life of men at that time. For these kind of things, the different paintings or the visual images were being used in Japan. ये चाइना से थोड़ा सा अलग था, चाइना में ये सब नहीं स्टार्ट हुआ था, बट ये विजुअल इमेजेस का जो कंसेप्ट था, that started through Japan. That was about the initial Asian nations. Now coming to the Europe. For centuries, silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route. Last chapter में ही पढ़ा था हमने. In the 11th century, Chinese paper reached Europe via the same route. तो जैसे सिल्क आता था, जैसे वो पॉटरी आती थी, टेराकोटा आता था, स्पाइसेस आते थे चाइना से, इंडिया से towards the Europe. Similarly, चाइना से पेपर भी यूरोप में पहुंचा through the same Silk Route. Paper made possible the production of manuscripts carefully written by the scribes. Manuscripts क्या होती है? Manuscripts are the same, hand printing को बोला जाता है manuscript. जो प्रिंटिंग आप हाथ से करते हो, जो उस टाइम पे हैंड प्रिंटिंग का काम हो रहा था, that is known as the manuscripts. और जो इसको लिखने का काम करते थे, they are known as the scribes. जो लोग, जो people, those who used to write it. तो ये पेपर आने की वजह से एक मैन्युस्क्रिप्ट्स बननी शुरू हो गई यूरोप में भी, और स्क्राइब्स उसको लिखा करते थे. दिस इज द सिल्क रूट व्हिच दे आर टॉकिंग अबाउट. ये लास्ट में भी हमने देखा था, लास्ट चैप्टर.
टॉकिंग अबाउट मार्को पोलो, मार्को पोलो आपने भी नाम सुना होगा बहुत बार. In 1295, Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. So as other people also used to move here and there, ये जो जितने भी आपके जो travelers होते थे, उनका काम क्या? Travelers used to move from their particular country to another nations. फिर वहाँ पे वो रहते थे, उनके culture को समझते थे, उनकी developments को समझते थे, उनकी problems को समझते थे. Then they moved to some other nation. धीरे धीरे घूम के फिर वो अपने nation में वापस आते थे. Then they used to tell about the different nations की इस नेशन में ये हमने देखा, ये हमने सीखा, ये इनकी गलत चीज थी, ये इनकी अच्छी चीज थी. That all complete explanation they used to do. So Marco Polo also, he was an Italian person, origin from Italy. He lived for several years in China. और चाइना को उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था. So he was the one who brought the knowledge of wood block painting from China back to India. तो यूरोप में wood block painting कहाँ से आई थी? Again, important question. It was through the Marco Polo जो यूरोप तक उसने चाइना की wood block painting को पहुंचाया. Now Italians began producing books with wood blocks and soon the technology spread to other parts of Europe. So it started. अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो सबसे पहले it started in Italy और फिर वो धीरे धीरे it spread all over there in the other countries of the Europe as well through the Marco Polo. So he was the person. Luxury editions were still handwritten. अब यहाँ पे यूरोप में अब ये थोड़ा सा और स्मार्टर बन के इन्होंने अलग चेंज किया. अगर आप देखोगे धीरे धीरे हर कंट्री अपने हिसाब से कुछ चेंज कर लेती है. इफ यू टॉक अबाउट चाइना, चाइना ने वुड ब्लॉक पेंटिंग को स्टार्ट किया, सॉरी वुड ब्लॉक टेक्स्ट को स्टार्ट किया. जापान ने उसमें एक एडिशन किया, उन्होंने विजुअल इमेजेस को स्टार्ट किया, विजुअल पेंटिंग्स को प्रिंट करना शुरू किया. और ऐसे ही यूरोप में अगर आप देखोगे उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने दो वैरायटी की बुक्स को स्टार्ट किया. वन वर नोन एज लग्जरी एडिशंस और दूसरा जो बोला जाता था दैट वाज द चीपर बुक्स. तो इन्होंने दो तरह की पब्लिक को टारगेट किया. इन द नेशन जो एरिस्टोक्रेट थे, जो हाई क्लास लोग थे, रॉयल फैमिलीज थी, जो अफोर्ड कर सकते थे, उनके लिए एक्सपेंसिव बुक्स बनाई जाती थी जिसको बोलते थे वो लग्जरी एडिशन. क्यों एक्सपेंसिव थी? बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट दीज लग्जरी बुक्स, ये वेलम से बनी थी. वेलम वाज द पेपर जो एनिमल स्किन से बनाया जाता था. सो बिकॉज इट वाज मेड थ्रू द मैन्युफैक्चर थ्रू द एनिमल स्किन, सो डेफिनेटली इट वाज वेरी कॉस्टली. सो एवरीवन इन द कंट्री वाज नॉट एबल टू afford these particular books. So ये luxury editions अलग निकाले जाते थे for the aristocracy, और जो बाकी थे students, merchants और बाकी different people, the poor people of the nation, they used to have this in the cheaper form. इनको छोटी और cheap books को जो सस्ते पेपर पे बनाई जाती थी उस पे प्रिंट किया जाने लगा. So this was something that Europe started. चाइना और जापान में ये चीज नहीं थी. It was being added through the Europe. As the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting books to many different countries. So जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली गई, all over the Europe book culture was spread. कैसे? बुक फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. जैसे आज भी होता है बुक फेयर लगता है, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज द बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड पुट देयर in the fair for the people. Similarly, that kind of book fairs were held at different places. Production of handwritten manuscripts was also organized in new ways to meet the expanded demand, and scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by wealthy or influential patrons, but increasingly by booksellers as well. What they're saying over here, अगर हम scribes की बात करते हैं, scribes हमने अभी पीछे वाले उसमें पढ़ा था. Scribes होते हैं those who used to copy the print, जो कैलीग्राफी करके बुक्स के प्रिंट बनाते थे हाथ से. They were the scribes. तो ये scribes को इनिशियल टाइम में, अगर हम सबसे पहले की बात करें तो इनिशियल टाइम में इट वाज बीइंग हायर्ड बाय जो बहुत जो हाई क्लास पीपल थे, जो एक अपर क्लास के लोग थे, वो इनको हायर करके कॉपी करवाते थे. बट नाउ क्योंकि बुक्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी, पीपल वांटेड इन यूरोप टू रीड द बुक्स, so what they were doing, book sellers, they also started keeping
देयर ओन पर्सनल स्क्राइब्स। जैसे मैंने बुक खरीदी, एक प्रिंटेड वुड प्रिंट वाली बुक खरीद ली 5, फिर उस 5 वुड प्रिंट वाली बुक को कॉपी करने के लिए मैंने स्क्राइब्स को लगा लिया अपने साथ। तो हर बुक के ऊपर मैंने 10 स्क्राइब अप्रोक्सीमेटली लगा लिए। सो इस तरह का कल्चर स्टार्ट हो गया था। सिर्फ अमीर लोग सब स्क्राइब्स नहीं रखते थे। इवन द बुक सेलर्स यूज्ड टू हैव लाइक मोर देन 50 स्क्राइब्स, ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर। 50 से ज्यादा सब स्क्राइब्स रखते थे, उनको कुछ सैलरी देते थे और बुक्स को छपवाते थे, बुक्स को डुप्लीकेट बनवाते थे और फिर वो बेचा जाता था। that trend started over there to meet the demand of the books. Now here again very important question जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, what was the problem of these hand written prints? जो hand written manuscripts जिनको हम बोलते हैं, उनका क्या प्रॉब्लम था? Why does production of hand written manuscripts fail? क्यों नहीं आगे ज्यादा डिमांड होने से ये बुक मैन्युस्क्रिप्ट्स चली? क्या इनकी प्रॉब्लम्स थी? पहली प्रॉब्लम थी बिकॉज ये हैंड रिटन थी, दे वर वेरी एक्सपेंसिव, दे वर लेबोरियस। अगर आप सोचो कि आपको मैं एक किताब दे दूं चाहे 15-20 पेज की हो, अगर यू नीड टू जस्ट कॉपी ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर, ईच एंड एवरी लेटर थ्रू द कैलीग्राफी, तो कितना लेबर का काम था, कितना मेहनत का काम था। तो दीज जो पहला रीजन है व्हाई दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स फेल, किसी भी तरह से घुमा के इस क्वेश्चन को दे देते हैं, बट आंसर विल रिमेन सेम, दैट दे वर एक्सपेंसिव, दे वर लेबोरियस, दे वर टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। बहुत टाइम लगता था एक बुक को छापने में। देन दे वर फ्रेजाइल, जो जल्दी से फट सकती है, जल्दी से खराब हो सकती है। दे वर ऑकवर्ड टू हैंडल, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स बनती थी, तो उसको उठाकर लेके जाना हमेशा पॉसिबल नहीं था, नॉट बी कैरिड। और अगर पॉसिबल होता भी था तो लोगों को बड़ा ऑकवर्ड लगता था। जैसे आप अगर सोचो कि आपको हाथ में बहुत बड़ा बड़ा कुछ सामान रोज लेकर आना पड़ रहा है, एवरी डे यू नीड टू ब्रिंग योर इंस्ट्रूमेंटल, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट गैजेट्स होते हैं, डिफरेंट बड़े बड़े गैजेट्स होते हैं, रोज लेकर आने पड़ रहे हैं, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इतने बड़े सामान को कैसे लेके जाएं? सो पीपल स्टार्टेड फीलिंग ऑकवर्ड टू हैंडल देम, टू कैरी देम अलोंग विद देम एवरीडे बेसिस। इसलिए इनका जो सर्कुलेशन था that remained limited. लोग बहुत ज्यादा इसको इधर उधर ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहते। With the growing demand of books, woodblock printing gradually became more and more popular, and by the early 15th century, wood blocks were being widely used in Europe to print textile, playing cards, religious pictures with simple brief cards, etc. अगर ये पूछा जाता है that manuscripts क्यों फेल हुई, बहुत ज्यादा नहीं चल पाई, क्या प्रॉब्लम्स थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें लिखनी है जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स में लिखी हुई है। तो अब क्योंकि हैंड प्रिंटिंग डिमांड को केटर नहीं कर पा रही थी, सो देयर वाज अ क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। अब जरूरत थी कि कुछ ऐसी इन्वेंशन की जाए, कुछ ऐसा नया सोचा जाए जिससे फास्ट प्रोडक्शन हो सके। तो कुछ अगर हम दूसरे फॉर्म में बोलें तो एक मैकेनिकल प्रिंटिंग की जरूरत थी रादर देन ऑफ गेटिंग इनटू द हैंड प्रिंटिंग। This could only be with the invention of a new print technology. The breakthrough occurred at Strasbourg, Germany, where Johann Gutenberg, इस नाम को भी मार्क करना है, very important part of the chapter. Who was this Johann Gutenberg? He was the first person who started with the printing press in 1430s. He was the first person जिसने इन्वेंशन किया था प्रिंटिंग प्रेस का। अभी तक जो प्रिंट हो रहा था वो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही थी, इसने एक मैकेनिकल प्रिंट का फॉर्म स्टार्ट किया, एक प्रेस लगाई, जैसे आज की डेट में एक प्रेस लगती है जिसमें आप बहुत सारी प्रिंटिंग करते हो। न्यू टेक्नोलॉजी हैज कम नाउअडेज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। डेफिनेटली उसकी टेक्नोलॉजी टाइम कंज्यूमिंग थी, बट हैंड प्रिंटिंग के कंपैरेटिवली थोड़ी बेटर थी और एक मैकेनिकल फॉर्म। सो ही वाज फ्रॉम जर्मनी, तो ही वाज द पर्सन जिसने एक प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। तो इसके बारे में जनरली पूछा जाता है पेपर में। तो टॉकिंग अबाउट हिम, Gutenberg and the printing press,
ही वॉज द सन ऑफ अ मर्चेंट। इसको ये आइडिया कहाँ से आया था? जो उसके फादर थे वो मर्चेंट थे, और उसने जो मतलब ही वॉज अ क्वाइट ही बिलोंग टू क्वाइट वेल्दी फैमिली, पैसे वाले लोगों की फैमिली में से था वो। तो एक लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट पे वो पहले बड़ा हुआ था, जहां पे उसने डेली बेसिस पे व्हाट ही हैज सीन थ्रू द वर्क इज ऑफ हिज फादर, जो ऑलिव और वाइन की प्रेसिंग होती थी। जैसे ग्रेप्स को आप जब प्रेस करते हो, दबा दबा के उसमें से जूस निकलता है या ऑयल निकलता है, सिमिलरली ऑलिव्स को प्रेस कर करके आप ऑलिव ऑयल बनाया जाता है। तो वो जो प्रेसिंग का सिस्टम था, उसके दिमाग में वो चीज बचपन से वो देख रहा था कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब प्रेस करते हो तो उसके अंदर बिल्कुल वो कैसे उसके अंदर जूस और ऑयल निकल जाता है। दैट वाज देयर इन हिज माइंड। Subsequently, he learned the art of polishing stones. जो साइड बाय साइड जो उसका शौक था, जो जेम्स के साथ, स्टोन्स के साथ उसकी पॉलिशिंग वगैरह का काम करना, ही वाज आल्सो वन ऑफ द मास्टर गोल्डस्मिथ। जो सुनार का काम वो करता था, उसको वो बहुत पसंद भी था, एंड ही हैज दैट टेक्निक इन हिज माइंड। He also acquired the expertise to create lead molds used for making trinklets. Trinklets होते हैं जो जैसे जो छोटे छोटे आपके ऑर्नामेंट्स या डिफरेंट डिफरेंट बीड्स वगैरह के डिजाइन बनते हैं। तो अगर आप देखोगे कोई भी ऑर्नामेंट से, कोई अगर हम नेक पीस की बात करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट मोल्ड्स होते हैं। लाइक ही जस्ट सॉ व्हाइल वर्किंग एज अ गोल्ड स्मिथ कि अगर मैं कोई मोल्ड बना देता हूँ और उसके अंदर मैं अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रेशस मेटल को या किसी भी मेटल को मैं अगर लगा देता हूँ तो वो उस पर्टिकुलर मोल्ड का फॉर्म ले लेता। तो दैट केम इन हिज माइंड कि अगर मैं ऐसे मोल्ड्स बना दूं जिसमें जो अल्फाबेट्स का फॉर्म में हमें अगर मोल्ड्स बना दूं, so that would be able, with that he would be able to do the printing, he would be able to start with the printing। अगर मैं ABCD, अब उनके अल्फाबेट्स वर डिफरेंट एट दैट टाइम, थोड़ा सा डिफरेंस था, बट अगर मैं ऐसे ABCD से लेके Z तक सारे अल्फाबेट्स के ब्लॉक बना दूं, तो एवरी टाइम आई नीड नॉट टू डू दैट कैलीग्राफी, एवरी टाइम व्हेनेवर आई नीड टू मेक अ वर्ड, अगर मुझे कोई भी वर्ड अगर मुझे बनाना है, पेन लिखना है, तो वो PEN का मैं ब्लॉक उठा के एक जगह पे सेट कर दूंगा, उसको प्रेस करूंगा तो वो उसकी प्रिंटिंग छप जाएगी और इट विल बिकम अ पेन। दैट टेक्नोलॉजी उसके दिमाग में आई। सो कहाँ से ब्लॉक जो मोल्ड बनाने का उसका माइंड में आया एज अ गोल्डस्मिथ, और वो प्रेस करके जो आप कोई चीज को छाप सकते हो, वो उसके माइंड में आया जो उसने बचपन से देखा था थ्रू द वाइन एंड ऑलिव प्रेस। So drawing on his knowledge, Gutenberg adapted existing technology to design his innovation. The olive press provided the model for the printing press, and molds were used for casting the metal types for the letters of the alphabet. So ऐसे उसके mind में आया कि how should I start with the printing press? So by 1448, Gutenberg perfected the system. The first book he printed was the Bible. Again, very important for one mark question. जो सबसे पहली बुक ग्यूटेनबर्ग की प्रिंटेड प्रेस में छपी थी वो थी होली बाइबल। अब और इसकी अबाउट 180 कॉपीज वो प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years। दो आज के टाइम के हिसाब से हमें ये 3 साल बहुत लगते हैं, बट उस टाइम के हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के जमाने की अगर हम बात करते हैं तो दीज ब्लॉक्स दे अपीयर टू बी कंपैरेटिवली, दिस प्रेस क्रिएटेड 180 कॉपीज इन 3 years was a remarkable achievement of that time. By the standards of this time, it was a fast production, and this was the first book which he printed with 180 copies in his printing press. The new technology did not entirely displace the existing art of producing books by hand. Hand printing जरूर चलती रही साथ साथ. In fact, printed books at first closely resembled the written manuscripts in appearance and layout. The metal letters imitated the ornamental handwriting styles. जैसे हाथ से कैलीग्राफी करते थे, सेम उसी तरीके की हैंडराइटिंग में ब्लॉक्स बनाए गए थे, मोल्ड्स बनाए गए। Borders were illuminated by hand with foliage and other patterns and illustrated with illustrations were painted। जैसे पहले जापान में किया जाता था, कुछ अगर आपको पिक्चर्स डालनी है बुक में तो वो पेंटेड पिक्चर्स थी,
बॉर्डर्स बनाए जाते थे और बाकी के जो लेटर्स थे उसके प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे. In the book printed for the rich, space for decoration was kept blank on the printed page. Each purchaser could choose the design and decide on the painting spool that that would do to do the illustration. So पहले book छाप दी, उसमें थोड़ा जगह छोड़ दी. This meeting is just about to end. Just rejoin again. I'll start from this particular slide, and very quickly please rejoin.